small behavioral changes, big impact. So basically, when we talk about impact, it means it's not just a temporary change, but long lasting change. And for long lasting change, we need to have repeated reminders, and our brain, हम इतने convinced हों कि हम कहें कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज है which we need to work on. So जरूरी है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें, जिसके लिए हम ऑलमोस्ट जो है वो 3 साल से इस तरह की ऑनलाइन वर्कशॉप्स करवाते रहते हैं, और मैं खुद भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। एंड एवरी मंथ, ऑल्टरनेटिव मंथ्स, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी किसी न किसी कोलीग को कि वो किसी लाइफस्टाइल मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करें। एंड टुडे आई एम रियली ऑनर्ड कि बहुत सीनियर लाइफस्टाइल मेडिसिन की हमारी फेलो फिजिशियन डॉक्टर ताहिरा सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं पब्लिक हेल्थ की, मेडिकल एजुकेशनिस्ट एंड पब्लिक स्पीकर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन की एंड पब्लिक हेल्थ, बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद। टीचर्स की टीचर्स हैं, और इनके सामने बनता नहीं है कि मैं कुछ बात करूं। सो डॉक्टर ताहिरा, ओवर टू यू प्लीज। आज आप हमें स्मॉल बिहेवियरल चेंजेस जिस तरह से बड़े बड़े इम्पैक्ट लेके आते हैं, और उसको किस तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर लेके आके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। So over to you. Looking forward to hearing for you and understanding the whole concept. हम सब की तरफ से, डॉक्टर शाज की तरफ से आपको a very warm welcome. thank you very much, Dr. Shabano, and I would really like to congratulate you and the whole team for, working on this cause, which is, I think, very important and need of the day. So, all participants, welcome. I'm so delighted. I'm so thankful to all of you that you spare time, especially on weekends, and you are here to, learn about you. So, I think this is something which we are neglecting somewhere, somehow, yet very important. So, starting with, can you please, the team, can you please share my slides? I think it's a very good initiative, and all of you who have joined here, there must be a cause. Like, I think you all are dedicated, you all are trained enough, or you're concerned about yourself. Usually this is the routine. I think we should be using both languages, English, Urdu, and I think it's okay. जी जी, it's totally fine. आप ठीक जैसे है ना? मर्जी बता। ओके, फाइन, जी 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 जी। ठीक हो गया। सो उससे पहले हम थोड़े से ग्राउंड रूल्स भी सेट कर लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, एंड आई वुड लाइक कि हम सब इंटरेक्टिव डिस्कशन रखें, क्योंकि देखा जाए तो जब हम बिहेवियरल जो चेंजेस की या लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, तो इट्स ऑल अबाउट रिमाइंडर्स। वी ऑल नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, बट सम हाउ द अदर वी आर नॉट इन प्रैक्टिस, या वो जो हम कहते हैं ना कि हमने इसको थोड़ा सा अपने पीछे रख लिया होता है, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट. So I think this is important thing that we need to refresh our thoughts, and we need to, as a team, when you are working in a team, when you listen to each other. So I would request all of you to kindly share your experiences as well. जहाँ पे आपको लगता है कि इससे related कोई आपके पास important चीज है बताने के लिए, तो most welcome. You can just raise your hand, or you can type in the chat box, and definitely we will discuss that point as well. So should we start? जी मैम प्लीज। I think all the participants, you have access to give reactions and type messages, right? So I would request all of you to just share one anything. Yes, thank you very much. I'm really delighted to see different, hearts and thumbs up and different expressions. So this is all about, our life is all about, having positive attitude, giving expressions, emotionally connecting with each other. And that is, I hope you know, that one of the very important pillar of lifestyle medicine. So I formally welcome you all and congratulate you as well to all the participants for attending this workshop. The reason being, this actually defines your attitude. And inshallah, because this is 34th workshop, and I'm really like surprised, and I'm really happy that I am part of this team. I'm facilitating one of the workshops where actually the team is working on
defining your altitude. So this is something, we should be thankful again. Next slide, please. So the topic you all know is small behavioral changes, big impact. So basically, when we talk about impact, it means it's not just a temporary change, but long lasting change. And for long lasting change, we need to have repeated reminders, and our brain, हम इतने convince हों कि हम कहें कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज है which we need to work on. So, next slide. ऐसा हो सकता, अच्छा, meantime, I would like all participants to kindly write in the chat box. Have you ever been to, because I have known that ये आपकी 34th workshop है ना, तो कोई ऐसी चीज जो कि आपने change किया, even कुछ ऐसे भी participants होंगे जो कि अभी न्यू कमर होंगे जिनकी फर्स्ट वर्कशॉप होगी, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई एक अगर आप मेंशन करना चाहें कि मैंने ये एक बिहेवियर और लाइफस्टाइल रिलेटेड बिहेवियर है विच आई हैव बीन एबल टू मेक चेंज, और एंड हाउ. थोड़ा अब जैसे अरसलान ने शेयर किया स्लीप हैबिट्स, थैंक यू फॉर शेयरिंग अरसलान, बट व्हाट स्पेसिफिकली अबाउट स्लीप? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम बेसिकली मैं रात को बहुत लेट सोता था, तो वो मैंने उसको बहुत अर्ली किया, लाइक 3-4 बजे सोता था, मैं अराउंड 10-11 बजे सो जाता, एंड आई हैव फेल्ट द इम्पैक्ट इन माय लाइफ। ओके, वो इम्पैक्ट आप कैसे फील करते हैं, मतलब व्हाट इज मैम एक्चुअली द उससे चेंज? पहले ये था कि मैं बहुत लेजी रहता था, अगर मैं 2 घंटे भी काम करता था बहुत ज़्यादा थक जाता था, कंसंट्रेशन मेरी बड़ी पुअर होती थी। नाउ आई कैन हम्म फील कि मैं सारा दिन भी अगर काम करूं विदाउट इवन टेकिंग नैप मैं कर लेता हूं, हम्म एनर्जी मेरी मेंटेन रहती है, सो आई फील अ लॉट ऑफ चेंज। ठीक है, गुड. तो वो जो एक हमेशा आपका वो होता है ना फॉगी ब्रेन जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए जगह जब आपकी रिस्टोरेटिव और पीसफुल स्लीप होती है, तो उसके लिए आप, सो यू आर एक्चुअली एबल टू मेक दिस चेंज. थैंक यू. व्हाट एल्स, एनीवन एल्स? जी तहमीना. वेलकम मैम। आप लिख के भी बता सकते हैं या कोई अनम्यूट भी कर सकता है. अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। सलाम. अच्छा मैम, मेरी जी. एक ये हैबिट मैंने इम्प्रूव की है कि लेट नाइट जो खाना खाना होता है, स्पेशली जंक हम्म फूड, जिसमें हमारे पास शुगरी ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, या फिर हम्म लेट नाइट जो भी मंचिंग वो करते हैं, तो वो जी. मैंने कंट्रोल की। इवन जंक फूड के अलावा भी ना, जो बहुत जी. लेट खाना खाने की आदत होती है और उसके बाद फिर फौरन से सो जाना, वो काफ़ी, हम्म उससे जो है ना वेट गेन में भी होता है। और ऐसा है कि उसमें वैसे भी सुबह जब उठते हैं ना, उस तरह मुझे फील होता है कि फ्रेश नहीं होते। तो ये ठीक है. चीज़ मैंने एक कुछ अरसे में चेंज की है, और इसके साथ साथ नॉर्मल थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी। ओके. अब आपको जी पता है कि मैम। जब हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, और जो आपने ये जंक फूड की बात की है, आई थिंक ये जो आप जिसको कहते कह रही ना हल्की फुल्की, इट्स अ बिग अचीवमेंट. थोड़ा सा अगर आप हमें ये बताएं कि हाउ एक्चुअली, लाइक फॉर एग्जांपल जंक फूड की तो अगर हम बात करें तो वी हैव अ लॉट ऑफ टेम्पटेशंस एंड ऑल दैट, उसको आपने कैसे, मतलब हाउ यू हैड दैट मच सेल्फ कंट्रोल? अच्छा मैम, मेरा शुरू से ही रहा है थोड़ा बहुत कि मतलब मैं वेट कॉन्शियस हूँ। तो हम्म जब मेरा फर्स्ट बेटे के पैदा होने के बाद मेरा वेट गेन हो गया था, तो उसमें हम्म मैम जो पोस्टपार्टम वेट गेन होता है, तो कोई ये ठीक नहीं है. देखता कि कितनी स्टेजेस से या कितनी, एक पूरा ईयर ही होता है ना 9 to 10 मंथ्स का, जी. उसमें जो आपकी बॉडी में कितने हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं। जी. तो उसमें एक तो मैम, एक इस उस समय बहुत हर्ट होती थी, तुम तो इतनी स्मार्ट थी, बहुत मोटी हो गई हो, अब नहीं पतली हो सकती तुम, अब तुम्हारा वेट लॉस नहीं हो सकता। जी. बस ये चीज वो मैंने माइंड में की, नहीं कि मुझे करना है। हम्म ऑल दो मैं वैसी नहीं हुई स्लिम स्मार्ट, लेकिन ये है कि काफी हद तक मैंने उसको कंट्रोल किया, और काफी हद तक जो है वो, मतलब अच्छी शेप में अच्छी बॉडी लगती ठीक हो गया. थी। तो देखिए, कुछ हमारे एक्चुअली जब हम बिहेवियर चेंज की बात करते हैं ना, तो कुछ हमारे आउटपुट क्यूज होते हैं या मोटिवेशंस होती है, कुछ हमारी इंटरनल होती हैं.
ऑल्दो आउटवर्ड मोटिवेशन, जैसे अगर किसी ने कह दिया या कोई ऐसा कोई ऐसी इवेंट है जिसमें आप कुछ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, यू वांट टू एक्चुअली चेंज योर आउटलुक, दैट इज अगेन अ गुड motivation. But what works for long term is your internal motivation. Or internal motivation, let me tell you, only comes when you relate your health, your lifestyle with the health and disease. This is something एग्जैक्टली मैम. which is very important. जब आप ये देखते हैं ना, and ultimately you realize it as you grow older. Older means maybe you are 16, 15, 18, 20. Definitely you are growing older each day. ये तो एक इनिशिएटिव होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, देन यू रियलाइज कि आपकी जो सेहत है वो कितनी बड़ी नेमत है. मुझे काइंडली कंफर्म एग्जैक्टली. कीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, Yes, हो ma'am. रही है. ठीक हो गया. So let's start formally. Thank you very much for all of you sharing your lifestyle habits, which actually you were able to change and it make impact in your life. So today's session objectives are: understand the science of behavior change, recognize how small habits accumulate over time, identify one behavior which you wish to change, and then at the end we will develop a practical action plan for sustainable change. So let me start with a very important reminder, which is already there in Quran, which says that indeed Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. So the very first effort which you need to do is you have to change. It should be your initiative, because if it's not your initiative, then what will happen? There is no miracle is going to work. So that is something which is very important. And apart from that, if you in Hadith, it is said remind again and again that the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer. So this should be the intention. I know you all spare time to attend this workshop, and what I would suggest all of you to make your and reframe your intention. It's not just about your health. It's not about, yes, it can be maybe, but before that, you should know that why you want to become healthy, why you want to become a strong Muslim, because you are in this world because of any purpose. So it will make a win-win situation where you are not just healthy for yourself, for your daily routine, but to please Allah subhanahu wa ta'ala as well, because a strong believer is always beloved to Allah more than a weak believer. And now, obviously, I think you know many, these articles, और ये जैसे आपकी 34th वर्कशॉप है. सो आई थिंक यू नो कि जो हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात करते हैं और बहुत सारी चीजें, दैट इज ऑल अबाउट evidence based, and it is more your death, because morbidity or mortality, disease or death, these are the things which everyone is concerned about. आपका क्या ख्याल है कि हमारी जो एवरेज लाइफ है पाकिस्तान की वो कितनी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं, या एक एवरेज, जैसे अक्सर जापान में आपने सुना होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज और मीन एज ऑफ एनी इंडिविजुअल इज 90 years. पाकिस्तान में कितनी है? 65. मैम 60 to 65 years. जी, इट्स अब थोड़ी सी वैसे बढ़ी है, 65 to 70 years. तो इसमें मेल फीमेल का भी थोड़ा सा वो डिफरेंस है, बट इट्स मोर देन 65. और इसमें अगर आप ये देखें ना, तो जो इंक्रीज होने की रीजन क्या है? एक तो रिपोर्टिंग सिस्टम आपका इम्प्रूव है, और दूसरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज या हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, और लाइफस्टाइल कम्स in that health seeking behavior, जिसमें like all of you sitting here, you all are concerned about your health, and that's why you are attending this workshop. But what about the deaths before 65 years? हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इट मीन्स वी आर फॉलोइंग, इफ डेथ इज बिटवीन 45 to 65 years, दिस इज नोन एज प्री मेच्योर डेथ. और प्री मेच्योर डेथ में पाकिस्तान जो है इंक्लूडेड इन दैट. और अगर इसमें आप रीजन देखें ना, तो मोस्टली सोशल सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंटल, हेल्थ केयर एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोज. सो लाइफस्टाइल मेडिसिन योर और योर डेली
habits, they contribute a lot in premature death. So when we talk about health, why we are concerned about lifestyle and all that? Because we are only concerned to our physical health. और फिजिकल हेल्थ क्या होती है कि अच्छा जी जब आप बीमार हो जाएंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप ट्रीट हो जाएंगे बट वी नेवर केयर अबाउट आवर इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ सोशल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ मुझे जरा बताइएगा व्हाट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल हेल्थ क्या होती है एनीवन सोशल हेल्थ मैम, जिस तरह हम अपनी कम्युनिटी में या अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, लेट्स हम्म सपोज हम अपने वर्क प्लेस पे अपने कोलीग्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है या फिर हम अपनी फैमिली में या हमारे नेबर्स में हम किस तरह से जी उठते बैठते हैं, हम कॉन्फिडेंटली उनके साथ बात कर रहे हैं या शाय फील कर रहे हैं, ये चीज। Acha, it's basically your relationships, and you know this is one of the very important pillar of lifestyle कि आपके दूसरे लोगों के साथ relations कैसे हैं उसके लिए जो जरूरी चीज है ना हम हमेशा if you're not healthy internally if you're not healthy emotionally or spiritually or mentally then you can't be healthy socially as well for that matter you need to work on this you need to work on your holistic health अब अगर जैसे अभी तेमन्ना ने शायद शेयर किया था कि she had started you know doing maybe small steps in exercise and started avoiding junk food अब इसमें हो सकता है कि हर कंसर्न वुड बी फिजिकल हेल्थ बट इनडायरेक्टली यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ ऑल पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ सो अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो हमारा तो वेट भी अंडर कंट्रोल है या हम ओबीज हैं देयर आर टू एक्सट्रीम्स ओबीज लोग लाइफस्टाइल को क्यों मॉडिफाई करना चाहते हैं जस्ट टू रिड्यूस द वेट दिस शुडंट बी द पर्पस बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट टू इंक्रीज द बैलेंस ऑफ हेल्थ जैसे हम अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज करते हैं ना बिल्कुल इसी तरह वी नीड टू इंक्रीज आवर पॉजिटिव हेल्थ एंड longevity जिसका भी बहुत कॉन्सेप्ट आ रहा है कि we need to increase the years of age not in terms of quantity but quality as well for that matter we need to work on our holistic health अच्छा अब लाइफस्टाइल मेडिसिन या हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया है डायबिटीज पे तो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ वन डे फॉर दैट मैटर आप ये देख सकते हैं कि कितने रिस्क फैक्टर्स हैं सबसे ज्यादा इलिटरेसी पॉवर्टी बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स जिसकी हम आज बात कर रहे हैं फिजिकल इनएक्टिविटी मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स ये अल्टीमेटली एक दूसरे को इंक्रीज करते हैं एंड देन a stage comes when you have all these kind of diseases which is just known as the tip of the iceberg लेकिन उसके पीछे जो causes हैं जो risk factors हैं they are often neglected और आप कोई भी देखें ये देखें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है फॉर एग्जांपल डायबिटिक्स में if you are not having proper food you are having sedentary lifestyle and they are ultimately affecting your hormones and generating not just diabetes but because of diabetes maybe you are having obesity is a side risk factor or apart from that your hormonal imbalance will cause autoimmune diseases as well. So this is a complex matrix. The point is when you started following healthy lifestyle, it will not just change the parameters which you supposed to जिसका आपने सोचा होता है मेरा वेट कम हो जाए या मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए उसके अलावा भी जो सारी चीजें they will be ultimately affect. So when we talk about healthy lifestyle or lifestyle medicine, so the important it's not just medical, behavioral, motivational environment not just the behavioral there are other its application at all level from if you top to bottom all levels of different parameters should be included and the primary modality is delivered by the clinicians trained and certified in this specialty and the important principle is self care and for that matter you all are here. तो पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल की अब आई एम श्योर कि आपको पता होगा वी टॉक अबाउट डाइट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी restorative sleep stress management risky substances including starting it's not just alcohol and tobacco but again the risk factors of the sedentary lifestyle this is again known as the next
epidemic or related to that, and even positive social connections. So if I ask you, what is your lifestyle? क्योंकि लाइफस्टाइल की भी जब हम बात करते हैं ना, तो इनिशियली इट वाज नोन एज ओके, द पर्सन is having good lifestyle is often known as rich person, or bad lifestyle, a person who is not having a good lifestyle is usually considered as poor. So now that I hope you know that new definition of lifestyle. So I would ask you how you will rate your lifestyle. Is it good? You can write in the text box, average, or you need improvement, or you are up to mark. You can just write in the chat. Okay. Hadisa said she had a good lifestyle, needs improvement. Ji Arslan ne kaha hai, and then good. Okay, fine. Yes, there is always room for improvement. So all of you are in this journey of learning lifestyle. So I'm sure that you are, different from other population and your other peers, because you are in the process of improving and learning. So can you please just, rate yourself, and it's not important to share even, but I would like all of you to rate yourself. For example, the first question is, I eat a predominantly whole food, plant rich diet and limit ultra processed food. So, how you will score yourself from 0 to 3? And same for all questions. And then you can sum up all the score or the numbers which you have given to each question. जी सबको नहीं देना, आप सबको अपने पास पेपर पे लिख लें, मोबाइल पे लिख लें, और फिर इन सबको जितने भी ये क्वेश्चंस है ना, 8 क्वेश्चंस हैं, तो आप जिस इसको नेवर, 0 मीन्स नेवर, ठीक है, 1 मीन्स समटाइम्स, 2 मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड 3 मीन्स ऑलवेज. आप इनको सम अप कर लें, हर क्वेश्चन को जो आप रैंक कर रहे हैं स्केल पे, और फिर हम इसका देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है. और इफ यू लाइक, यू कैन शेयर योर स्कोर in the chat box as well. But the calculation should be very honest. I get the score of 10. Yes, Javedia, you are right. 12, 11, 14. Okay, good score. 14. I hope you know what is the total. Total is 24. Okay, let's see what does score means. Those who are having 20 to 24, they are considered as a lifestyle champion. 15 to 19 on the right track, and ultimately they will be champions. 10 to 14, room for improvement. So it's not late, even if you are, 10 to 14, you can improve. But 0 to 9, it's borderline, or it's the red line, which says that it's time to reset. Maybe your lifestyle is increasing risk of chronic diseases, and suddenly you know that diseases like diabetes, hypertension, इसको ऐसे लगता है कि नहीं जी मैं तो बुखार हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गई, मलेरिया हुआ, whatever, और वहां पे जब टेस्ट किए तो पता चला शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो सडनली इट विल बी अनाउंस्ड. मतलब इस तरह की ये वो डिजीजेस है. सो फॉर दैट मैटर, today is the time when you can check on this checklist how much you are on the track, so you can improve yourself. So when we talk about behavior, this was just a pre-assessment, or I was thinking to make you conscious that you should know where you are standing, and with that mindset, on what scale you are, आपको कितना improve करने की जरूरत है, and how you are going to improve, this is what we will discuss. So starting from behavior, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि आदतें change नहीं हो सकती. It's not like this. You can change your behavior through repetition. So behavior is just a conduct. So anyone can
change their conduct. And it's a basically combination of culture, attitude, emotions, values, ethics. अब आप इसमें देखें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब लोग रोटी खाते हैं बिकॉज इट्स आर स्टेपल डाइट एंड दिस इज पार्ट ऑफ कल्चर. अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो उनकी स्टेपल डाइट राइस होती है या कॉर्न होती है. सो habit or behavior is mix of all these combinations which we are experiencing, observing or practicing since our childhood. So it can be modified. इस तरह का ये कहना कि हम ये चीज छोड़ नहीं सकते, it can be changed. So behavior is the manner in which a person behaves, whether they can conform to the accepted social standards or not. Now talking about lifestyle behaviors. So when we talk about your behavior to nutrition should be good, it means eating fruits and vegetables, reducing sugar and salt, drinking water, avoiding processed foods. फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो डेली आपकी वॉक होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज हो. वॉक एंड एक्सरसाइज आई होप कि इसके ऊपर बात हुई होगी, दे आर टू सेपरेट थिंग्स. एंड देन योर सिटिंग टाइम, restorative sleep 7 to 9 depending on your age and all that. Stress management, are you practicing mindfulness or not? Deep breathing, relaxation exercises, avoidance of risky substances. Like there are some modern addictions as well, how much we are careful about those. And then positive social connections, very important but often neglected. Spending time with the family, maintaining relationships, and participating in community activities. So these are common behaviors when we talk about lifestyle. कि अच्छा ये तो lifestyle pillars हैं, लेकिन उसमें हमने करना क्या है, ये सारी वो habits हैं. So it's just like an iceberg, which I told you earlier. It is combination of feelings, uncertainty, needs, thoughts, and sometimes it's overload. And ultimately it manifests into behavior. Now there are different factors which which affect behavior, and as I told you, there are certain things which are normal in one country, in one culture, while they are abnormal in other situations. So it depends on your genetics, your childhood experiences, your social norms, and your core faith. And even all definitely religion also comes in this category. So it's a cause and effect, it's a very mathematical kind of thing. हम ये ऐसे नहीं सोच सकते कि अच्छा मैंने तो अभी एक दिन एक मिनट कुछ स्टेप्स ही अगर आप लेंगे ना, तो इट डेफिनेटली improves your hormones, it definitely improves your how you are perceiving the things, it reduces your stress, it increases your work capacity and all that. So this is a very true cause and effect relation. जब हम बात करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि मलेरिया किस तरह होता है मॉस्किटो बाइट से, ठीक है. सो देर आर सर्टेन बिहेवियरल पैथोजेंस, कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि आपके बिहेवियर को चेंज करती हैं, एंड दीज आर ऑल बैड लाइफस्टाइल बिहेवियर्स. एंड देयर आर सम इम्यूनोजेंस जिसके लिए आप वैक्सीनेशन लेते हैं कि अच्छा मुझे ये बीमारी ना हो. सो दीज आर योर बिहेवियर्स. There are certain factors which actually barriers which actually stop you on working on your health behavior. Can you write down in the chat box what are those barriers? अगर आपने अभी देखे हैं कि कुछ ऐसे practices हैं, habits हैं which you should follow but you are unable to follow, what do you think are the reasons क्या है वो अगर लिखें. हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने में क्या क्या आपके बैरियर्स है. कंसिस्टेंसी, ओके. Consistency means maybe you are not consistent in performing this activity. उसके लिए क्या करेंगे डॉक्टर अफीफा? If you think, and I am very happy because this is something, जैसे हमारा भी जो एक दिन उठते हैं तो हम सोचते नहीं आज मैंने बहुत एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद आप फिर छोड़ देते हैं. तो डॉक्टर अफीफा आप काइंडली लिखिएगा भी कि इसका सोल्यूशन क्या है. ओके, जब ये सेड लैक ऑफ इंटेंशन, ओके, तो ये तो जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और इंटेंशन के लिए कुछ आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए. लैक ऑफ इंटेंशन मीन्स लैक ऑफ मोटिवेशन.
either internal or external, personal or अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम आपने कंसिस्टेंसी वालेकुम। का पूछा, उसमें मैडम आप भी गाइड करिएगा, जो मेरी समझ में आता है, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है, मोटिवेशन भी आती है, आप दिल भी करता है कि करें, लेकिन क्योंकि हम लोग एक सोशल बीइंग्स हैं, तो अगर आपका हम्म, एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है ना, मतलब आप करना चाहते हैं, मसलन आप जल्दी रात को सोने का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, या आप फिजिकल हम्म, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन अगर पूरी फैमिली एक पेज पे नहीं है तो समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है, या कोई हम्म, अनफोर्सीन कुछ आ जाता है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ठीक है क्या। योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स नीड्स यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका अपना पैटर्न क्या है, आपकी अपनी इंटेंशन, हाउ मच यू आर ईगर टू फॉलो दैट रूटीन। और इसके बाद वी आर वेरी राइट, अभी हमने बात की भी की है कि आपकी इन्वायरमेंट जो है इट काउंट्स अ लॉट। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास जगह ही नहीं है एक्सरसाइज करने की, अच्छा इन सब चीजों के आप यू ऑलवेज कैन सर्च अबाउट ऑल्टरनेट्स। अगर कंसिस्टेंसी आपकी नहीं रह पा रही फैमिली मेंबर्स की वजह से, तो देर आर 2-3 solutions फॉर दैट एज वेल। अगर एक दिन आपका एक्सरसाइज के लिए मिस भी हो जाए तो डजेंट मैटर, इट्स नॉट मैंडेटरी टू डू एक्सरसाइज एवरी डे। even if you are doing exercise or walk 5 days a week, it will serve the purpose। लेकिन वो एक दिन ना करने की वजह से क्या होता है कि आप थ्रू आउट उसको अपनी रूटीन बना लेते हैं। तो होता क्या है कि एक दिन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, दूसरे दिन आपके पास टाइम भी था एंड मतलब एनवायरमेंटल जो सारी फैसिलिटेशन भी थी, लेकिन आपने फिर भी नहीं किया क्योंकि आप डीमोटिवेट हो गए, आपने कल एक्सरसाइज नहीं की थी, आपने वो साइकिल ब्रेक किया। अच्छा, और उसके साथ आप 6 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करते हैं ना, तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू follow all the 6 pillars at the level of excellence. It's not possible for anyone, but at least your graph should be going upward. This is the challenge कि आपका वो जो कहते हैं ना कि आपका आज जो है वो कल से बेहतर होना चाहिए। This is the only, you can assess your success by just comparing your today with your yesterday or past। lack of motivation, ठीक है, डॉक्टर जो है मोहम्मद जूरी ने लिखा है, एंड देन motivation to exercise daily। okay, Aisha, it's not important to do exercise daily, but 5 days a week can serve the purpose। But again, if you're not having motivation for any day, then I think you should, there is something wrong with the methodology of exercise। कि वो exercise actually, maybe you are not a typical gymmer। आप हो सकता है कि कोई और एक्सरसाइज नहीं, देयर आर डिफरेंट नेचर ऑफ एक्सरसाइजेस, आप कोई और नेचर ऑफ एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं। And then Zomail writes that workload, inconsistent behavior, stress, emotional imbalance। अच्छा, ये जो आपने जो बातें लिखी है ना, they are more related to stress, ये they are very important। Stress and emotion and workload and burnout, ultimately you stuck into this negative cycle। वर्कलोड ज्यादा होता जाता है आपके लिए, अपनी सेल्फ के लिए टाइम कम हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस मजीद होगा, मजीद स्ट्रेस आएगा, और वर्कलोड मैनेज नहीं होगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस सर्कल है जो कि आपका चलता रहेगा। सो फॉर दैट मैटर यू नीड टू टेक बेबी स्टेप्स, यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ एंड स्टार्ट एटलीस्ट डूइंग एनीथिंग। जी, आलिया ने कहा जंक फूड, ओके। जंक फूड में भी अगर आप देखें तो आई थिंक सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क बैलेंस रूटीन, यस, अगेन वर्क बैलेंस रूटीन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे लोगों को वर्क प्लेस पे भी एक्सरसाइज करते हुए या कुछ स्टेप्स लेते हुए, इवन व्हाट दे डू इज लाइक स्मॉल एक्ट्स। फॉर एग्जांपल, वो गाड़ी थोड़ी दूर बाइक पार्क कर देते हैं कि हमारे कुछ स्टेप्स इसी तरह पूरे हो जाएं, या वो कैफेटेरिया में हेल्दी चॉइसेस के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, मतलब यू कैन वर्क ऑन दैट। अब आप कहते हैं कि 30 minutes a day you should walk at least for 30 minutes a day। आप कहते हैं मेरे लिए तो आधा घंटा निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप 30 मिनट इकट्ठे निकालने मुश्किल है, तो आप 10 मिनट सुबह दोपहर शाम तो निकाल सकते हैं। This is what you can do। So you always have to search on the plan। अगर ये नहीं हो रहा तो इसको मैं
इसका ऑल्टरनेट या प्लान बी क्या है? Environment of the house, husband sleeps at 2 to 3 a.m. I agree, but this is just one factor, Sonia. This is just your, sleep habits. But what about other factors? And to tell you truth, अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल, sleep can be modified by the simple ways कि आपने जल्दी सोना है. But an indirect way is, अगर आप रात को लेट भी सोते हैं, सुबह आप अपने टाइम पे उठे एंड हैव अ माइंडफुल टमी फुल ब्रेकफास्ट, ये आपका जो सर्केडियन रिदम के साथ आप अलाइन करेंगे ना, तो अल्टीमेटली आपका वो जो स्लीप साइकिल है वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा. लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, सोल्यूशन इज टू जॉइन अ वॉकिंग ग्रुप. यस, जस्ट फाइंड एनी कंपेनियन. आप ये देखें कि अक्सर ऐसे लगता है कि एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन आप बड़े इंथुसियास्टिक जॉगर्स खरीदते हैं, वॉक करते हैं, बट अल्टीमेटली यू डोंट फॉलो दैट प्लान बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंट बिहेवियर. तो उसके लिए आप क्या करें? चूज एनी लाइक कंपेनियन. अगर आपका किसी दिन नहीं भी दिल करेगा, सेट सम रिमाइंडर्स. तो आप उसमें क्या कहते हैं, यू कैन adopt these things. So there are different behaviors and they start from individual, family, health system, community. ये सारे आपने अभी डिस्कस किए. Let's discuss them one by one. Barrier to healthy, individual barriers क्या है? First of all, you see, आप अपनी OPDs में देखें, मोस्टली आप मुझे बताएं कि कितनी दफा आप या हम सब हॉस्पिटल इसलिए गए हैं कि आई वांट टू स्टे हेल्दी, ऑल्दो आई एम हेल्दी, I am not having any disease, any risk factor, any morbidity, but still I am going to doctor for my monthly checkup or for my yearly checkup or for some advice related to lifestyle. Never. आप मुझे बताएं, कोई आप में से गया कभी कि although I am healthy but I am going to see a doctor because I want to stay healthy. So this is we are always in habit of quick fix. अगर आप पेशेंट्स को भी कहते हैं ना कि आप जो है डायबिटीज की ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये मेजर्स करनी है, आपने ये वॉक करनी है, डाइट को इस तरह करना है, कितने फ्रिक्वेंटली करनी है, फाइबर रिच डाइट लेनी है, तो उनको ये बहुत मुश्किल काम लगता है बिकॉज आवर एनवायरमेंट इज नॉट सेट टू फैसिलिटेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो दीज आर इंडिविजुअल बैरियर्स. वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई जो है ना, मतलब ये इतने लंबे काम नहीं हमसे हो सकते, हमें 3 की बजाय 5 गोलियां लिख दे, लेकिन आप बस हमें गोलियां लिखते हैं. सो देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक यू सेड, inertia to start, and then we want immediate rewards. So immediate rewards you do get. आप 10 मिनट की वॉक करते हैं, उसी टाइम के आपकी ऑक्सीजन जो सर्कुलेशन है वो अच्छी होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव होती है, आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, आपके जो जितने भी डिप्रेसेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, दे स्टार्टेड टू डिसॉल्व. बट इट्स नॉट ऑलवेज इन मॉनिटरी टर्म्स कि आप अभी आपने एक्सरसाइज शुरू की है, साथ ही आपका वेट जो है वो करेक्ट होना शुरू हो जाए. बट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द इमीडिएट रिवॉर्ड्स, एंड देन tendency of most people to believe that they are less likely to become ill than others. ये भी जो है ना, ये बहुत जो एक मेरा ख्याल है एज अ नेशन हमारा एक माइंडसेट है कि जब होगा देखा जाएगा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं आई एम ओके गुड, मैं सुबह उठता हूँ, ठीक हूँ, चल फिर रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें आहिस्ते से, जैसे मैंने आपको वो आइसबर्ग दिखाया था ना कि वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट टिप ऑफ द आइसबर्ग, लेकिन उसके नीचे जो फैक्टर्स है वी आर नॉट वर्किंग. तो हम जब प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स यू नीड टू increase the positive balance of health and you want to recorrect the risk factors even. अब यहाँ पे देखें, एंड देन अभी जैसे बात की थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कि अगर आपकी पूरी फैमिली कॉम्पोजिशन, अगर जी ये सोनिया ने बात की थी, इफ यू आर द होल फैमिली इज स्लीपिंग एट 2 or 3 AM, so definitely this is a family barrier. आप उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? उसके लिए तेरा लाइक लोग कहते हैं कि यू नीड टू मेक द रोल मॉडल्स. Obese parents are most likely to have obese children. Children of problem drinkers are themselves increased risk of abusing alcohol. और उससे भी ज्यादा अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो अक्सर ऐसे होते हैं ना, आई होप यू विल एग्री विद मी, कि हमने खुद मोबाइल पकड़ा होता है, we are always on the gadgets and we are asking our children not to use gadgets. How is it even possible?
नहीं है ना, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, यू नीड टू set an example. And how you can set example? By role modeling. This is something which is very important. And nowadays everyone is on mobiles and not मोबाइल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कॉमन रिस्पेक्टर है. अदरवाइज आप देखें कि आपका जो खाना पीना, यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग ऑल द सेम थिंग्स. एंड देन हेल्थ सिस्टम बैरियर, जिसकी हमने पहले भी बात की है. हेल्थ सिस्टम बैरियर में अगर आप देखें तो medicine trends to focus on treatment rather than prevention. A significant percentage of Americans do not have health insurance. Unrealistic और confusing recommendations. Health system की हमारे अभी तो अलमिया ये है कि हमारे जो health system है, we have medical specialists, we have surgeons, we have eye specialists, all specialities, but we don't have, up till now we don't have appointments of healthcare coaches or healthcare physicians और लाइफस्टाइल कोचेस जो कि होलिस्टिकली हमें इन सब चीजों के बारे में बताएं. सो दीज आर सम हेल्थ सिस्टम बैरियर्स. और इवन अगर आप मुझे बताएं कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, सम ऑफ यू आर डॉक्टर्स एज वेल, आई कैन सी. तो डॉक्टर्स जब फिर प्रिस्क्रिप्शन, स्पेशली आयरन सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स की जब सप्लीमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो क्या होता है पेशेंट्स का? मैम वो मेडिसिन यही लेते होता हुए है आप मेडिसिन से. कि ये किस टाइम लेनी है, टाइमिंग्स ठीक का है. पूछते हैं. और इसके अलावा जी किस टाइम लेनी है, उसके अलावा अगर आप स्पेशली आयरन की मेडिसिन, जो कि उनको लग रहा होता है कि ये गर्म है, ये दवाई जो है ये गर्म है. हाँ, वो पूछते खाने के साथ लेनी है या मैदे पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा इससे. एग्जैक्टली. वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये मैंने किसके साथ लेनी है, ये मैंने दूध के साथ लेनी है, ये गर्म दवाई है. तो अब ये देखिए हमारे, दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड टाइम कि जिसमें आप अपने पेशेंट्स को ये बता सकते हैं कि आपने बेसिकली वो आपसे ना खाने के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं, खाने के रिलेशन से पूछना चाह रहे होते हैं, ये मैंने मेडिसिन कब लेनी है, पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, जूस के साथ लेनी है. सो दैट इज द टाइम व्हेन एक्चुअली यू कैन क्विकली गाइड देम अबाउट देयर लाइफस्टाइल एज वेल. और फिर हमारे यहाँ क्या होता है, आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेरा ख्याल है उठा के देख ले, जिसमें आप कम से कम, अगर आपने डायबिटिक है, हर घर की बात है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उनके अगर आप ये देख लेना तो उसमें तकरीबन 10-12 तो मेडिसिन होती हैं उस प्रिस्क्रिप्शन में. लेकिन वहां पे एक पेशेंट जो कि हार्ट डिजीज के साथ है, डायबिटीज के साथ है, हाइपरटेंशन के साथ है, उसकी डाइटरी रिकमेंडेशंस या लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, आपने कभी देखी हैं? जी, कोई रिकमेंडेशंस आपने देखी है? यूजुअली क्या होता है अ, कि वो कुछ ज्यादातर स्टैम्प नहीं होती होती है, मैम रिकमेंडेशंस, या तैयार नहीं कोई होती स्टैंप है, ही लगी अगर हो होती है, भी बस ना. जिस पे लिखा होता है परहेज करें, यस. बस आगे कुछ नहीं लिखा होता. जी. मिर्च मसाले से परहेज करें या जो है चहलकदमी करें, दैट्स इट. तो दिस इज वन ऑफ द हेल्थ सिस्टम बैरियर. एंड देन कम्युनिटी बैरियर. हमारे जो घर बने हुए हैं, हमारी जो मोहल्ले बने हुए हैं, या जो भी अगर आप देखें तो वो पर्पस बिल्ट नहीं है. एक एरिया के अंदर आपकी जहाँ पे बहुत सारे घर है, वहां पे कुछ ऐसे पार्क्स भी होने चाहिए, और कोई एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता है ये सारी लाइफस्टाइल हैबिट्स दे स्टार्ट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड. फॉर बच्चों के लिए तो कम से कम इस किस्म की कोई जो है फिजिकल एक्टिविटी की जगह होनी चाहिए. सो कम्युनिटी बैरियर्स आर ऑलवेज देयर. लेकिन अब ये देखें, ये कुछ ऐसी, दीज आर ऑल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स अदर देन इंडिविजुअल बैरियर्स. आप फैमिली बैरियर्स को भी किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, आप कम्युनिटी बैरियर्स और हेल्थ केयर बैरियर्स को यू आर अनएबल टू कंट्रोल. अब आपने उसके अंदर रहते हुए अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई करने हैं. और फिर जब आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करना चाहते हैं ना, तो आप डू, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ही देखें, जितने भी हमने कमेंट्स, विदाउट मेंशनिंग नेम, अगर मैं ये देखती हूँ, अगर कोई ये कहा जा रहा है कि एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस इज नॉट अप्रोप्रिएट, देयर इज लैक ऑफ सोशल सपोर्ट और समथिंग, सो इट मींस दीज आर आवर कॉमन एक्सक्यूजेस जो कि हम कर रहे हैं. So we need to check on what are our common
commonly used statement. For example, if someone says I don't have enough time, जैसे अभी यहाँ पे भी किसी ने कहा ना, it means we need to chart our daily activities. जब आप ये देखते हैं ना कि अच्छा मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाता एक्सरसाइज के लिए, तो आप जरा अपने पूरे घंटों की ना एक एक घंटा करके आप अपनी एक्टिविटीज देखें। आप जरा ये देखें कि जब आप मोबाइल पकड़ते हैं जस्ट टू चेक योर नोटिफिकेशंस, आधा घंटा गुजर गया, एक घंटा गुजर गया और आपको पता नहीं चला। इट मीन्स वी आर नॉट हैविंग अप्रोप्रिएट एक्टिविटी चार्ट। हम अपने टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं है, टाइम है हमारे पास। अगर आप ये कहते हैं कि ओ आई एम टू स्ट्रेस, मैं तो भी थका हुआ आया हूँ, इट मीन्स यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स and then list how many of they I can control and how many are there which I can avoid. तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको आप अवॉइड करें, और जो कंट्रोल में है उनके ऊपर आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इस तरह की बनाएं कि वो कंट्रोल है। आई वरी अबाउट व्हाट अदर्स मे थिंक। सो जो हमारा कॉमन है ना कि लोग क्या कहेंगे, सो वी नीड टू चेक दैट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई हिम्मत कर ही ली कि आप अपने डाइट प्लान को फॉलो करें, तो आप कहीं पे अगर एज गेस्ट आए या आपके घर में कोई आए, तो यू आर ऑलवेज फोर्स के नहीं आप जरूर ये खाएं वो सारी चीजें। अच्छा आप मतलब आपको आर यू इन सम हैविंग सम डिजीज या कोई प्रॉब्लम है जो आप ये डाइट ले रहे हैं, सो फॉर दैट मैटर वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, इट्स अ हैबिट, आई कांट ब्रेक इट। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि नहीं जी आते कहाँ चेंज हो जाती है, अब 50 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में आते कहाँ चेंज होती हैं। सो यू नीड टू but as you are practicing into that habits, they are difficult but not impossible. So important is what triggers your behavior, उसके ऊपर आपने काम करने की जरूरत है। अब जो कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं ना, हमने एक्चुअली ना अपने आप को लेबलाइज कर लिया था, नहीं मैं तो मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, या ओवर जनरलाइजेशन भी आप कर लेते हैं, नहीं जी एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइट से फर्क पड़ता है, या डाइट से फर्क नहीं पड़ता एक्सरसाइज से पड़ता है। और उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि आप किसी बड़ी चीज को बहुत छोटा या छोटी को बहुत बड़ा बना लेते हैं। सो बेसिकली यू आर डिसक्वालिफाइंग द पॉजिटिव, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस और कॉमन डिस्टॉर्शन। जब आप बात कर रहे होते हैं, बात अगर आप किसी से भी डिस्कस करें अपनी डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स या यू आर हैविंग सेल्फ टॉक, उसके अंदर भी आइडेंटिफाई करें कि आपने वो एक्सक्यूज किया है इस बिहेवियर को चेंज करने की, उस बिहेवियर को चेंज करने की जो एक्सक्यूज है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और उसको देखें कि कहीं ये ऐसी तो नहीं है जो कि it's not actually the excuse but cognitive distortion. So basically you need to move from a fixed mindset to growth mindset, and that means that everyone is talented in many ways. अगर आपका एक लाइफस्टाइल पिलर you are unable to follow, then definitely there are many other 5 others which you can follow. अगर स्लीप का आपका जैसे आजकल समर वेकेशन और वो सब है, रूटीन आपकी चेंज हुई है, बट why not to work more on other factors? So for that matter you need to make your own metrics of breaking and building habits. अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कौन सा, there are 2 things, creating behavior and preventing behavior. कुछ ऐसे behaviors हैं जो कि आप खत्म करना चाह रहे हैं या उनको रोकना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे behaviors हैं जो आप create करना चाहते हैं। So creating behaviors with low efforts, this is something which you should start working on. अगर आप इसमें इसके ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप बजाय कि एक आदत को खत्म करें, आप एक नई आदत को शुरू करें जो कि लो एफर्ट है, जिसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की भी जरूरत नहीं है, एंड देन यू कैन मूव टू प्रिवेंटिंग बिहेवियर। अब अगर इनमें देखें जैसे नोवाइस एक्टिविटीज हैं जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम की, बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल ईटिंग हेल्दी या अपनी रिफ्लेक्शंस लिखना, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, या आप अगर स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सिंपल लाइट एक्टिविटीज करें, एंड देन you move to expert activities which need high effort. For example, अगर आप ये देखें कि if you want to learn something which is very technical, which is very time taking, then you can move to those habits.
एंड ब्रेकिंग हैबिट्स में अगर आप या प्रिवेंटिंग हैबिट्स में बिहेवियर्स में अगर आप बात करें तो यू कैन जैसे गेमिंग एडिक्शन बहुत कॉमन है, नेल बाइटिंग और ईटिंग टू मच स्वीट और चॉकलेट्स, दीज आर द हैबिट्स व्हिच यू कैन control with low effort. Start from that, and then you can come ultimately to breaking addiction. So this is how you can identifying your own like style of implementing. First, follow creating behavior with, and then you can move uh, to this the great habit. मेरी slide share हो रही है? जी मैम शेयर हो रही है। Okay, give me a minute. जी, अच्छा, अब इसमें अब ये सारी चीजें आप एक किस तरह का मैट्रिक्स अपना खुद भी बना सकते हैं। कैन यू राइट टेल मी और राइट इन द चैट बॉक्स, और यू कैन जस्ट अनम्यूट कि कौन सी आपको कौन ऐसी हैबिट्स हैं विच यू वांट टू create. First you need to work on creating behavior with high effort. Anyone related to lifestyle? मैम डेली एक्सरसाइज। Okay, so maybe you are doing exercise but with low effort. High effort could be consistent. वो जिसको कहते हैं ना, बारिश भी हो रही हो, कुछ भी हो, मेरा कंपेनियन है या नहीं है, आई हैव टू डू एक्सरसाइज। अगर जिम बंद है बट आई नीड टू डू strength training at home. So that is obviously, in order to keep that habit inconsistent, you have to do put high effort into it. So अब इस तरह आप, I और used to the do that. idea is, I used जी, to do that daily exercise, daily running. But अभी कुछ अरसे से मेरी जरा जॉब थोड़ी टाइमिंग बढ़ गई है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है और मैं हम्म कर नहीं पा रही। और जो मुझे 2 days वीकेंड के मिलते हैं वो फिर मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, अब मेरी बॉडी हम्म को रेस्ट चाहिए एंड आई एम गिविंग इट हम्म रेस्ट, तो मैं कर ही नहीं सकती। ठीक हो गया। अब उसमें आपके ड्यूटी आवर्स क्या है? मैम आजकल 4 days a week from 8 to 8। 8 to 8, okay, but definitely you would be having some break in between. आपकी टी ब्रेक भी होती होगी, लंच ब्रेक भी होती होगी। यस मैम होती है। आजकल मुझे ऐसे फील हो रहा है इतनी गर्मी है, अब इसमें मैं दिन में तो नहीं हम्म निकल सकती और जो शाम है उसमें मुझे ब्रेक नहीं मिलती, तो मुझे ठीक ऐसे है। फील होता है कि अब नहीं कर देखिए पाऊंगी मैं। इसमें मतलब इसमें इट्स जस्ट मैटर ऑफ सर्चिंग डिफरेंट, लेट्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, तो उसके लिए भी आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप अपने ऑफिस में ही कर सकते हैं, अपने रेस्ट रूम में कर सकते हैं। आप मतलब इट्स नॉट ऑलवेज कि आपने कुछ रनिंग करनी है या वॉक करनी है या कुछ ऐसी स्टर्नस एक्सरसाइजेज करनी है। और उसके अलावा मिनिमम लेवल पे आप ये कह सकते हैं कि अपना सिडेंट्री लाइफस्टाइल ब्रेक करें। अब अगर ऑफिस वर्क है और 8 to 8 है, मे बी यू आर कॉन्टिन्यूसली सिटिंग फॉर 2-3 hours, तो इवन आफ्टर कॉन्शियसली you are standing up from your work station after every hour for just 5 minutes, it means you are breaking your sedentary lifestyle. So this again comes into healthy habit building process. ठीक है, तो इसमें यस सिर्फ मैम आपको थोड़ा सा एक्चुअली मैनेज द करना थिंग है। है। हाँ मैम वो जी। पता है यही चीज प्रेशर बन जाती है कि पहले जो 12,000 स्टेप्स डेली होते थे अब वो 4,000 पे चले गए हैं। तो ऐसे हम्म लगता है कि मैंने चलो अपने वर्क को तो बेहतर कर लिया, बट मेरा ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई। हम्म मैम असल ठीक है, में यस यू आर राइट। देखिए आपको इसमें ना अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, एक्स्ट्रा टाइम देने की, और अपनी जो एक्सक्यूजेज है ना उसका जो ऑल्टरनेट या प्लान बी है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हर एक का वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हर एक की रूटीन डिफरेंट है। उसी रूटीन में से आपने टाइम निकालने हैं विच आर कंसिस्टेंट विद योर वर्क कल्चर एज वेल।
अच्छा, मैम अब इसमें हम मैं एक कुछ चीज ऐड इसकी करूंगा। जो अब जी प्लीज। असल में जो मैम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की हमारी जो परसेप्शन होती है वही गलत होती है। बेसिकली इफ़ यू आर वर्किंग हम्म फॉर 12 आवर्स, तो उसमें बीच में जो आपको टाइम मिलता है उसमें आपने अपने मसल्स को थोड़ा सा एक्सरसाइज देना होता है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। हमारा हम्म कॉन्सेप्ट ये होता है कि नहीं, बीच में अगर 5 मिनट में मिले ना, और जिधर भी बेड मिला, सोफा मिला, उधर लेट जाएंगे और बस दिस इज हम्म। रेस्ट। तो जी वो परसेप्शन ही एग्जैक्टली। हमारी लाइफस्टाइल। मैम आई एम योर स्टूडेंट एक्चुअली, आजकल एसओडी में हमारी आपके साथ सेशंस हो रहे हैं। तो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसमें मैंने ये सीखा कि हमारी परसेप्शन ही चीजों के बारे में गलत है। तो आई थिंक एग्जैक्टली ये इसके बिल्कुल। लिए दिस गोज फॉर द वर्क एज वेल। यस यू आर वेरी राइट। मतलब उसमें अगर आप ये देखें तो हम यही कहते हैं कि अच्छा मैं बहुत थक गया हूं, मैं सो जाऊं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, लेट्स हैव अ 15 मिनट वॉक। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। या आप आपको लगता है कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं जब आप कुछ जंक फूड कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ। नो, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वी नीड टू रीडिजाइन। हम अपने लिए थोड़े से एम्पथेटिक हो जाते हैं, और लेकिन उसकी ट्रू रीजन क्या है या उसका ट्रू पर्पस क्या है, या एक्चुअली व्हाट आर द मेजर्स विच कैन हेल्प योरसेल्फ। तो एग्जैक्टली मैम। अब उसी में अगर आप ये देखें कि हैबिट बिल्डिंग जो प्रोसेस है, उसमें फॉर दैट मैटर यू नीड टू identify your cues in the typical routine and then reward yourself. For example, a trigger that starts the behavior routine, the behavior or action itself, and the benefit. For example, आप एक क्यू सेट कर देते हैं, नो इट्स माय फॉर एग्जांपल 5 p.m. your alarm is ringing and reminding you that it is the time for exercise. You go for a walk and you feel more energized. This is the reward. तो इस किस्म के आपको कुछ क्यूज सेट करने की जरूरत है। और वो क्यूज क्या हो सकते हैं कि वो मॉर्निंग क्यूज भी हो सकते हैं। लेट्स से कि आपने अपने वर्क स्टेशन पे अपने डेस्क पे सामने लगाया हुआ है कि आफ्टर एवरी 1 hour आई हैव टू डू 5 minute एक्टिविटी। ये सारी उसमें हो सकती हैं। These are different cues which you can apply. And other than that, what you can do? G, behavioral nudges. Small changes in how choices are presented to encourage better decisions without forcing people. Placing fruits at eye level in a cafeteria increases healthy eating. अब ये आप कैसे कर सकते हैं? जी, anyone? कैन यू सेट सम रिमाइंडर्स कि जिसमें आपको ये पता चले कि आपने लाइक अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर की बात करें, अगर कोई बचा हुआ केक का पीस है या कोई अगर इस तरह की कोई चीज पड़ी हुई है, तो स्ट्रेट अवे आप जाएंगे और जाके वहां से। और एक और तरीका ये हो सकता है कि आप अपने फ्रिज में इस तरह की चीजें जो लेफ्ट ओवर्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। जी, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा, तो अब ये देखें, इस तरह की कोई आप एक्टिविटीज कर सकते हैं जहां पे आपके सामने वो चीजें हो ही ना, बिहेवियर नजेस दीज आर नॉन। और उसमें आप अपने कैफेटेरिया में कुछ ऐसे ऑप्शंस रख सकते हैं, या आप अपने किचन में। और ये आपका स्टार्ट होता है ग्रोसरी लिस्ट के साथ, कि जब आप कुछ ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली यू हैव चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग समथिंग विच इज फ्रूटफुल फॉर यू। और जैसे कुछ ऐसी रिप्लेसमेंट होती हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू, अब आपकी जब लाइफ स्टाइल की आप ये सेशंस ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, आपकी ग्रोसरी लिस्ट में कुछ चेंज आया? कैन एनीवन टेल मी? जी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जी कोर्स मैम। वाले, जी मैम बिल्कुल। यू आर ऑलवेज जी, ग्रीन क्या चेंज आया? ग्रीन वेजिटेबल्स जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स दे आर नाउ पार्ट ऑफ एवरी मील ऑलमोस्ट। ओके, व्हाट एल्स? आपने कुछ चीजों को मैम रिप्लेस एक वो किया भी कुछ क्या, ये चीजों जो के साथ? क्या कहते हैं, कलरफुल प्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो भी मतलब
on and off we are trying it now. Okay, good. I know you are a medical specialist और आप continuously in busy OPDs. I know this is something which is very important. और इसमें आपका अक्सर ऐसे होता है कि आप पानी पीना भी भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास आपके डेस्क पे वाटर बॉटल होनी चाहिए, एक्सेस टू हाइजेनिक वाटर होना चाहिए, Yes, ताकि ma'am. आप वो फौरन, अब अगर एक्सेस ही नहीं होगी तो डेफिनेटली यू आर अनएबल टू कंज्यूम दैट वाटर जो कि आपको जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा आप ये देखें कि कुछ स्मॉल प्रैक्टिसेस हैं विच यू कैन ऑलवेज प्लान एट योर होम, एट योर रूम। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि आप, और इसमें जब आप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना, रिप्लेस शुगर विद व्हाट, चीनी को किससे रिप्लेस करें? Ma'am, I've replaced it with stevia. ठीक है, तो सिंपल रिप्लेसिंग विद शक्कर, इट कैन हेल्प यू। एंड व्हाट एल्स? और अगर आप ये मैदा है उसको आप रिप्लेस करें, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट यू कैन इवन बेक योर पिज्जा विदाउट फ्लावर। उसके लिए भी आप ये देखें, जो हेल्दी व्हीट है उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं, जो मल्टीग्रेन व्हीट है उससे भी आप बना सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर choice and effort in order to practice that choice. Environmental design, keeping a water bottle on your desk encourages hydration, while placing junk food out of sight reduces snacking. There are different models of health behavior, but right now we'll talk about trans-theoretical model, which is very important. इसमें क्या है कि you need to assess, for example, check any behavior which you want to change right now. और सबसे पहले आप ये देखें कि वो आप किस स्टेज पे हैं। इफ यू आर एट द स्टेज ऑफ प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन और मेंटेनेंस। प्री कंटेम्पलेशन इज यू आर इवन अनअवेयर ऑफ दैट प्रॉब्लम। अक्सर आप ये कहते हैं कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये भी कोई इशू है। आप कहते हैं कि नहीं जी, मैं 1 आवर जिम कर लिया मैंने, नाउ आई नीड नॉट टू हैव एनी फिजिकल एक्टिविटी। और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज है। The person who is a regular gymmer for 1 hour maybe, but not in habit of doing physical activity. Physical activity and exercise, they both are different. यानी कि 1 घंटा जिम कर लिया, लेकिन बाकी जो 23 घंटे है ना, वो अपने रिमोट हाथ में है और आप टीवी देख रहे हैं। You are unaware what health risk you are getting from just sedentary lifestyle. अब अगर आप इस स्टेज पे हैं तो देन यू आर एट द स्टेज ऑफ प्री कंटेम्पलेशन। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर अनअवेयर। आपको पता ही नहीं है कि अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, या इससे आप एक्चुअली व्हाट यू वांट टू चेंज, यू आर इवन अनअवेयर। और ये क्या होता है कि ये आपको पता कब चलता है, व्हेन यू फॉल इनटू सम मेजर इलनेस। अभी ओपीडी में यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको पता होगा कि अगर हम रीनल डिजीजेस की बात करें, किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर के साथ पेशेंट आते हैं। अब वो एक्यूट किडनी फेलियर 1-2 दिन या हफ्ते या 1 महीने की बात नहीं होती, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, जिसमें आपकी देखें कंसिस्टेंट आपका यूरिक एसिड भी ज्यादा होता है, आपका जो है डाइटरी इम्बैलेंस भी है, आपकी हाइड्रेशन भी पुअर है, और उसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी पुअर है। अब इस अनअवेयर, अक्सर लोग ये कहते हैं नहीं जी फिर पता चल गया तो अमल भी करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। लेकिन उसमें अगर पता ही नहीं चलेगा तो देन यू कैन एंड अप इन द डिजास्टर। देन कम्स द कंटेम्पलेशन, वेयर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज। आपको ये पता है, आप कर नहीं रहे, लेकिन आपको ये पता है नहीं यार ये करना चाहिए, हमें हेल्दी खाना चाहिए, हमें टाइम पे सोना चाहिए, हमें अपने जो स्ट्रेसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, हर वक्त गुस्से में, हर वक्त डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। देन कम्स अ स्टेज वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि नहीं, नाउ इज द टाइम आई हैव टू चेंज। बेसिकली इट कम्स विद इंटेंशन, गुड इंटेंशन। और इसके लिए भी ना कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ सम नियर वन। आप कहते हैं कि अच्छा वो मेरा सिबलिंग था या मेरे पेरेंट्स थे who were having the same lifestyle, and now because of poor lifestyle they end up in some chronic disease. I don't want to be like them. ठीक है, आप जो है वो लेसन लर्न करते हैं।
and you make some intention. That is actually when you are in the stage of preparation. And then comes action. प्रैक्टिस द डिजायर्ड बिहेवियर. आप अपने जॉगर्स लेते हैं प्रिपरेशन वाली स्टेज पे, आप टाइम सेट करते हैं, आप अपनी कुछ लेयर टाइम सेक्रीफाइस करते हैं. जो टाइम आपने टीवी पे टॉक शोज बैठ के देख रहे थे, आप उन टाइम को अवॉइड करते हैं और आप उसको एक्सरसाइज या वॉक के लिए यूटिलाइज करते हैं. एंड देन एक्चुअली यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग और इम्प्लीमेंटिंग दैट प्लान. देन कम्स मेंटेनेंस, जिसकी अभी हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है, कि दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट maintaining it, then relapse can come and you can again fall down. आप ये बताते नहीं नहीं जी साल पहले तो मैंने बहुत एक्सरसाइज की थी, बस फिर एक वो मोटिवेशन थी, मोटिवेशन खत्म हो गई, and then again you are gaining weight and all that. So you need to, it's a continuous process. ऐसा नहीं होगा कि आपने मेंटेनेंस हमेशा रहेंगी. There might be many relapses, but how to counter those relapses, this is something which should be part of the plan when you are at the stage of preparation. This is one example. For example, if you are in pre-contemplation stage 1, then contemplation, preparation stage when you are searching for healthy tips, and then action, implementation, and then if not, then you can, this is maintenance, like if you are reducing your weight through exercise and running and maintaining with the healthy lifestyle or plant-based food items. But if you are not maintaining it, then again you can come into relapse, which is even more severe than the initial condition. So can you please tell me, pre-contemplation is which stage? आप में से अगर कोई बताना चाहे. The first one, if we call this as first, pre-contemplation. जो इस स्टेज पे लोग हैं जो कि अनअवेयर हैं, they don't know like whether there is need to change or I don't not. need it. I don't need to I change don't need or to I change. can't change. Very good. मतलब उनको ये पता है कि नहीं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं कोई बात नहीं, सब चीजें ठीक चल रही हैं. और अगर आप कंटेम्पलेशन स्टेज पे हैं तो आपकी वर्डिंग्स क्या होंगी? I will change. I will change. Sure. I may change भी हो सकता है. I may change. I May. may change. क्योंकि विल में तो जाहिर है कि आपका एक्शन और वो सब चीजें आ रही है जिसमें आपकी प्रिपरेशन और वो सारी चीजें. एंड देन प्रिपरेशन क्या होगी? I I am will- changing. I will change. ठीक है. अब इसमें क्या होगा कि डेफिनेटली व्हेन यू डिसाइड आई विल चेंज, तो आप उसकी एक इंटेंशन भी समझ आती है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रिपरेशन भी करते हैं. एंड देन एक्शन, आई एम चेंजिंग. एंड मेंटेनेंस इज, आई हैव बीन मेकिंग अ चेंज फॉर मोर देन 6 months. 6 months तक अगर कॉन्टिन्यूसली आप एक हैबिट को प्रैक्टिस करें, देन यू कैन से ओके आई एम इन प्रैक्टिस ऑफ दैट हैबिट. एंड देन I won't return to my old habits. This is termination, where you actually at the level of maintenance, you sustain your maintenance stage and you are not at the habit. आपको फिर उसके बगैर जो है ना, आप उस habit को terminate नहीं कर सकते. So for that matter, you need to understand at which stage you are. So you need to identify your stage. अगर आप में से कोई एक शेयर करना चाहे, कोई भी, कि आप कौन सी हैबिट चेंज करना चाहते हैं एंड एट विच स्टेज ऑफ दैट ट्रांसथोरेटिकल मॉडल यू आर. जी, एनीवन? मैम स्लीप मैनेजमेंट पे तो काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए. नाउ द सेकंड, अब जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड आई थिंक आई एम एट द लेवल ऑफ कंटेम्पलेशन. आई एम थिंकिंग अबाउट द चेंज, and Okay. I'm trying to find ways how to control my stress. ओके. तो उसके लिए आप मैडम, क्या कर मैं- रहे हैं? मतलब आर यू हैव यू वर्कड ऑन दिस, कि आपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है? मैम उसमें ये था कि एक तो वही कोर्स के दौरान हमने सीखा था जो माइंडफुल थिंकिंग थी या जो टाई ची की टेक्निक थी,
I'm working on those, although abhi I'm in the beginning stages, लेकिन I am feeling much better than before. मुझे लग रहा है कि there is something that I am working on at least. आपको पता है कि जो आपका स्ट्रेस का पहला लेवल इसी से खत्म हो जाता है कि यू एक्चुअली हैव स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. दिस इज समथिंग विच इज नेगेटिव. अच्छा, कोई भी चीज को जब हम कहते हैं ना कि आई नीड टू यू नो गिव अप दिस हैबिट, आई वांट टू फिनिश दिस हैबिट, फॉर दैट यू नीड टू एक्चुअली अडॉप्ट सम गुड हैबिट. हम एक्चुअली अपनी बुरी आदतों को खत्म करने के चक्कर में ना वो उस पे एफर्ट कर रहे होते हैं. वो भी करनी चाहिए, बट देयर शुड बी यू नो योर एफर्ट शुड बी कि हाउ आई कैन अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स. आई होप यू आर गेटिंग माई मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, Yes, अगर ma'am. आपको किसी एक चीज से स्ट्रेस होता है ना कॉन्टिन्यूसली, उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल है कि स्ट्रेस के लिए आप स्ट्रेसर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि लाइक फॉर मी आई थिंक इट्स नियर टू इम्पॉसिबल. अब उसकी रिप्लेसमेंट में आप कुछ हेल्दी चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं विच आर एक्चुअली बायोलॉजिकल. फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं इन द आफ्टरनून. ये क्या करता है, आपकी स्लीप को भी रेगुलेट करता है और आपकी स्ट्रेसेस को भी रिड्यूस करता है. आपकी एफर्ट के मतलब आप वो स्ट्रेसेस वहीं पे होते हैं, उनको आपने खत्म नहीं किया, बट आपकी जो एक परसेप्शन थी, आपकी जो उन स्ट्रेसर्स के अगेंस्ट जो रिएक्शंस थे वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं. ये बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रैक्टिसिंग अदर पिलर्स है. और उसके अलावा आप सर्च करें, आपको पता चलेगा कि जितनी भी आप फूड कॉम्बिनेशंस, योर फूड कॉम्बिनेशंस आर एक्चुअली इंक्रीजिंग योर स्ट्रेस लेवल एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, हाई this complex carbohydrates, simple carbohydrates and proteins, जिसको हम कहते हैं ना कि चावल और चिकन कढ़ाई और साथ में एक कोका कोला हो जाए. दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन एंड इट इंक्रीजेस योर स्ट्रेस एज वेल. तो बात यह है कि आप स्ट्रेस को तो खत्म करना चाह रहे हैं, बट आर यू वर्किंग ऑन अदर्स पिलर्स? दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक हेल्थ, holistic well-being, के जहां पे एक it's a compact matrix where all these pillars are interconnected, and then obviously your conscious effort to reduce that stress, that is there, but apart from that you are working on your circadian rhythm and your biological well-being, ताकि आपका वो stress तो वहीं पे रहेगा लेकिन आप चेंज हो जाते हैं. जी, anyone else? मैम यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी. मैं आजकल अपनी स्लीप हैबिट पे भी काफी काम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा हो गया था, देर से सो रही थी और ऐसे के कुछ नाम याद नहीं आ रहा, बात करते करते कुछ समझ नहीं आ रहा. तो मैंने अपने स्लीप टाइम को, जो कि 1 तक चला गया था, उसको मैं 11 तक लेके आ रही थी. तो आई वॉज इन दी एक्शन फेज. लेकिन मैंने फिर देखा कि कुछ दिनों मैंने ऐसे किया कि मैं सुबह को एक प्रॉपर नाश्ता नहीं करके गई, जिसकी वजह से मैं रात को आती थी तो उस वक्त मैं मील ले लेती थी और वो हैवी मील रहता था, क्योंकि पूरे दिन खाली पेट रहने के बाद मैं वो खा लेती थी. और उससे ये होता था, अराउंड 9:30 में वो मील लेती थी तो 11 तक वो हजम ही नहीं होता था. उसकी वजह से मुझे एसिडिटी होना शुरू हो गई और मुझसे सोया ही नहीं जाता था. तो 3-4 दिन जब ये चला तो मुझे फिर अंदाजा हुआ कि ऐसे नहीं हो सकता, इससे मेरी वो जो स्लीप वाला मैं करने की कोशिश करी वो नहीं हो पा रहा. तो अब मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ कि मैं मॉर्निंग में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँ और वीक में मैं कोई अपना मील टाइम रखूँ, ताकि मुझे इवनिंग में आके बहुत ज्यादा नहीं करना. ठीक है, तो अभी आप मुझे पहले ये बताएं कि आप किस स्टेज पे हैं अभी? मैम एक्शन फेज में तो हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 10:30 तक बेड में चली जाऊं, ताकि मैं 11 नहीं तो 11:30 तक तो सो सकूं. ठीक हो गया, वेरी गुड. अच्छा, अब इसके ऊपर फिर हमारा स्टैंड अलोन एक अलग डिस्कशन होनी चाहिए स्लीप हाइजीन के ऊपर, कि आप जब माइंडफुल या रिस्टोरेटिव स्लीप की बात करते हैं तो एक्चुअली आपकी स्लीप एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए, और उसके लिए आपने जो स्क्रीन टाइम है वो कितनी देर पहले आपने स्क्रीन को ऑफ कर देना है, और वो सारी चीजें ना. लेकिन अगर इस सारे सिनेरियो में जो आपने मुझे बताया ना, इसमें अगर मैं सिर्फ एक टिप अगर आपको दे दूं जो कि बॉडी रीसेटिंग से है, आप जैसे रीस्टार्ट या रीसेट या रिफ्रेश का
बटन दबाते हैं ना किसी भी गैजेट को अपडेट करने के लिए, उसी तरह द बेस्ट थिंग इज to have your breakfast best before 9, ideally between 7 to 9. अगर आप ये कर लेते हैं ना तो एक हफ्ता 2 हफ्ते कहीं ना कहीं आपका वो जो पूरा सर्केडियन रिदम डे नाइट साइकिल है ना वो मॉनिटर होना शुरू हो जाएगा। आपको कम एफर्ट करनी पड़ेगी। वो जो आपको 10:30 पे बेड पे जाके भी 11:30 तक आपको नींद आ रही है ना, वो एफर्ट अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द राइट टिप, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। और यही जैसे आपने वो मेंशन भी किया है ना कि ब्रेकफास्ट आपका वो पूरा, क्योंकि आपने सर्केडियन आपने बॉडी को कोई अवेकनिंग सिग्नल ही नहीं दिया ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप मतलब जब आपको एक लाइट स्नैक्स लेने थे लंच की फॉर्म में, वो आप हैवी, वो उस टाइम पे आप एक्चुअली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो सारा एक आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि आप इंसुलिन और जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनकी जो बैलेंस और उनकी एक्चुअली दिस टाइम दे दीज शुड बी इन द ब्लड, वो सारी आप उन चीजों को चेंज कर रहे हैं। सो एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? अच्छा चलें, इसके साथ हम ये देखते हैं कि अगर आप में से जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपका जो भी लाइफस्टाइल बिहेवियर है जो आप चेंज करना चाहते हैं, उसको आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी स्टेज पे हैं। अब उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्री कंटेम्पलेटिव के? डजंट सी इट, नो, अनअवेयर, डिफेंसिव। हम कहते हैं नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे साथ तो ये मसला है, क्योंकि मेरी वर्क आवर्स बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मेरा ऑफिस ऐसे है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है वॉक करने की एंड ऑल दैट। इंटरवेंशंस ये है, हेल्प देम थिंक अबाउट ट्रस्ट बिल्डिंग, गेट अ रिएक्शन आइदर कॉग्निटिव और इमोशनल। अगर कंटेम्पलेटिव स्टेज पे हैं तो देन वी शुड help not just patient but ourselves as well to explore what are the options, and we need to aware of the problem and it will lead to openness to information and you can pass that information। और उसके लिए आप सबसे पहले कहते हैं कि अच्छा आपको राइट करें, लिखें कि आपको क्या चीजें हैं जो कि आपको बैरियर्स क्या है, क्या चीजें आपको रोक रही हैं, एंड देन रेडी फॉर एक्शन, डिसाइड यस ready to do experimentation but maybe you are unable to implement। तो उसके लिए आप कहते हैं नहीं जी अब ये तो मैंने पक्का फैसला किया है कि मैंने लाइफस्टाइल फॉलो करना है, लेकिन करना कैसे है? फॉर दैट मैटर यू नीड टू गिव some you should have all the suggestions, all the tips in your toolbox and focus on developing a step or small steps, and then एक्शन पे अगर होंगे तो सपोर्ट, प्रेज, रिकग्नाइज, गिव ट्रीट टू योरसेल्फ। आप जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को शाबाश देनी चाहिए कि ओके वेल डन, आई एम डूइंग दिस, डोंट कर्स योरसेल्फ। हम हमेशा एक दिन अगर आपने ब्रेक कर लिया ना तो आप हमेशा ये कहते हैं कि नहीं मुझे पता था कि मैंने तो यही करना है, मेरे साथ तो होना ही ऐसे चाहिए, तो डोंट एवर कर्स योरसेल्फ। वो एक दिन अगर गैप आया तो नेक्स्ट डे you should start with the new energy and then maintenance it, then we can say okay now that habit becomes a lifestyle। आपके सामने जितने भी लेवरेज खाने पड़े हैं, you know the basic principle, you know what is junk food, you know how much। और अगर आप कभी जैसे अगर आप फंक्शंस पे जाते हैं, शादियों पे, तो आप कुछ ऐसी मतलब लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो करते, कुछ ऐसी चीजें अगर जंक फूड ले भी लेते हैं, so the idea is to balance that you know the side effects or the bad effects of that food into your next meal। फौरन अपने आप को रीसेट कर लें। और जो गलती ये होती है रात को शादी पे आपने लेट नाइट खाना खाया, हैवी खाना खाया और आप सो गए और सुबह आपने नाश्ता नहीं किया, ये इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को रीसेट नहीं किया। सो यू ऑलवेज नीड टू रीसेट योर बॉडी। So the take home message is your personal behavior, you should make your personal behavior change plan। ये आपकी एक असाइनमेंट है, आपने ये आज ही इसके ऊपर काम करना है और इसको अपने रेफ्रिजरेटर में, अपने रूम में, अपने ऑफिस में, जहां पे आपका जो यहाँ पे आप बार बार जाते हैं, एक रिमाइंडर के तौर पे आपने इसको जरूर वहां पे पेस्ट करना है।
which behavior will you change, you want to change, why it is important. इसके आगे जरूर लिखे it is important because I want to live long, because I have a family, because I want to enjoy my life, because I don't want to be burden for anyone. अब एक हमारी कलीग है, उनसे किसी ने पूछा why you want to follow lifestyle, तो उन्होंने कहा मैं इसलिए ताकि मैं जब 60-70 साल की भी उम्र में चली जाऊं ना, तो मैंने सजदा जमीन पे करना है, नमाज में सजदा मैंने जमीन पे करना है. So this could be one of the motivation for having physical activity or having fitness. Why it is important? I don't want to die early. ठीक है, ये सारी चीजें आप उसमें लिखें. Which small action will you start with? Always take baby steps. Don't make ambitious goals. उसके लिए आप ये कहेंगे ओके मे बी आई कैन स्टार्ट विद 10 minutes वॉक डेली. अब 10 minutes अगर आप देखें तो इट्स नथिंग. 10 minutes तो आप बिल्कुल जो है ना मोबाइल पे एक व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन चेक करनी थी, लेकिन आपने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया और आप आधा घंटा भी कैसे गुजरा आपको नहीं पता चला. सो राइट डाउन व्हाट स्मॉल स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो. वेयर विल यू प्रैक्टिस इट? अब इसकी इम्पोर्टेंट है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपकी वेन्यू क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई करने. व्हेन विल यू डू इट ईच डे? हु विल सपोर्ट और कीप यू अकाउंटेबल? द फर्स्ट पर्सन हु कैन बी अकाउंटेबल इज यू. लेकिन अगर आप खुद नहीं है तो देन यू कैन ask someone, you can ask your family members, if I am deviating from my path, you need to tell me, you need to remind me. How will you make it easy to succeed? अपने गोल्स को मेंटेनेंस के लेवल पे रखने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए आप नोट डाउन करें कि अगर एक दिन मैंने लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस नहीं की तो नेक्स्ट डे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट इज ऑल्टरनेट. So that is all from my side, and the take home message is small steps every day, every time, they are actually helpful for lasting change. And give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So all of you who are doctors and who are, no, even not allied healthcare professionals or belong to non-medical specialty, at least start teaching someone. आज आपने जो भी सीखा है ना, दूसरों को बताना शुरू कर दें. जब आप दूसरों को बताते हैं तो अल्टीमेटली योर ears are also hearing and you start applying or you start implementing. Just like this session is more reminder for me as compared to you कि मैं अपनी कौन कौन सी habits को I need to refresh them, and I'm not at the level of maintenance, maybe how I can be consistent in that. So this is how actually you can learn and you can strengthen in your own lifestyle. So that's all from my side. I'm sorry I took almost half an hour above the time, but you all are here. I'm very happy. If you have any question, those who can leave, you can leave, please. I know you have many other commitments too, but I am here. If you have any question, please, you can text me or you can unmute yourself and ask. जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी, आ रही है. अच्छा, ये बहुत ही अच्छा माशाल्लाह बहुत मालूमाती आपने वो किया. इसमें ज़्यादा स्ट्रेस यही था ना कि हमें अपनी हेल्थ खुद ख़्याल रखना चाहिए ना, और जब तक ये ठीक नहीं होगी, जब तक हम जी. खुद नहीं करेंगे. अच्छा, इसमें मेरा एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे यहाँ कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है डॉक्टर्स को कि एक हेल्दी पर्सन उनके Yes. पास आए और वो कहे कि जी मैं अपना ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं मुझे एडवाइजेस दें या मैं कोई मुझे टेस्ट लिख कर दें. तो डॉक्टर्स का रवैया बहुत अजीब होता है. आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों आए हैं? मतलब ये Exactly. मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट कि सिर्फ एक मरीज आया उसको हर सूरत में दवाइयाँ लिख के ही देनी है, नुस्खा लिख के ही देना है. जी. तो ये थोड़ा Yes. सा मेरा ख्याल है कि हमारे उसमें चेंज होनी चाहिए कि एक जिसका मैं अपना आपको बता दूं कि आई एम 70 years old है और मैं ज़मीन पर सजदा करती हूँ
और मैं चाहती माशाल्लाह। हूँ कि मैं जब तक मैं हूँ ऐसी ही रहूँ। और मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे ये थोड़ी-सी वो है, मुझे गाइड कर दें। क बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद ऐज आ जाती हैं और विद ऐज वो ठीक होती हैं, दे आर नॉर्मल। मतलब आप हमेशा यंग तो नहीं रह सकते, हमेशा एनर्जेटिक तो नहीं रह सकते ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में आती हैं। तो लेकिन उनको ऐसे ट्रीट करना कि ये भी बीमारियां हैं और मतलब ये इस तरह का कुछ होना चाहिए। डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर उनके पास कोई आ रहा है तो उसमें आप उनकी हेल्प करें कि वो कैसे अपना मतलब अपने आप को बेहतर रखें विदाउट मेडिसिन। जी एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच सलमा। ये आपने बहुत, मैम सलमा आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। एक्चुअली यू नो कि हमारा जो डेफिशिएंट, हमारा करिकुलम डॉक्टर्स का बहुत डेफिशिएंट है। अगर आप हेल्थ सिस्टम की बात करें ना, तो हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम क्यूरेटिव मॉडल पे बना हुआ है। बीमारी हो गई है, अब उसकी दवाई क्या देनी है, अब उसको ऑपरेट कैसे करना है, हमारा क्यूरेटिव मॉडल नहीं है। क्यूरेटिव मॉडल होता है कि आपने अपनी कम्युनिटी के, हमारा हेल्थ बजट बहुत कम है, और वो जो हेल्थ बजट हमें मिलता भी है ना गवर्नमेंट ऑफ पाक से, जो सारे हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सिर्फ स्पेंड हो जाता है मेडिसिन के ऊपर और ट्रीटमेंट्स के ऊपर ने। अब उसमें प्रिवेंशन के ऊपर आने के लिए नंबर वन हमारा इतनी कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, क्योंकि हमें किसी ने एजुकेट ही नहीं किया। जब हम डॉक्टर बन रहे थे, प्रिवेंशन सबने कहा कि ये दवाइयां लिखो, ऐसे सर्जरी करनी है, प्रिवेंशन के ऊपर बात ही नहीं की। तो हमारे करिकुलम में डेफिशिएंसी है, फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ बजट या रिसोर्सेज में डेफिशिएंसी है, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स क्योंकि उस करिकुलम के थ्रू नहीं होके आए हुए, तो वो प्रैक्टिस में भी नहीं लाते। लेकिन द गुड न्यूज इज दैट नाउ, जैसे आप लोग भी सब यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए, नाउ लाइफस्टाइल इज अ बज़ वर्ड। नाउ एवरीवन नोज द ओनली सोल्यूशन इन कंट्रीज लाइक आर्स, पुअर, अगर आप सिनेरियोज में देखें जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है, वी कांट अफोर्ड टू बिल्ड मोर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड ऑल दैट। हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, तो द ओनली सोल्यूशन इज वी हैव टू वर्क ऑन प्रिवेंशन। इसी से आप डायबिटीज में तो आप नंबर वन हो गए हैं। एवरी थर्ड पर्सन इज हैविंग हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन जिसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, वो इटसेल्फ आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, जब तक कि आपको फालिज ना हो जाए, आपका एक्यूट रीनल फेलियर ना हो जाए, या उसके अलावा हार्ट अटैक ना हो जाए, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ था। तो ये इसीलिए क्योंकि हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई, डॉक्टर्स को भी। और अगर मिली भी हुई है ना, तो उसमें क्या है कि हम चूंकि अभी जैसे बहुत सारे मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स भी बैठे होंगे, देखिए दे विल एग्री विद मी कि आपके पास एक लंबी ओपीडी की लिस्ट होती है, 50-100 मरीज आपने रोज देखने होते हैं, तो आप एक एवरेज देखें कि आप एक पेशेंट को कितना टाइम देंगे। बहुत आसान है कि आप सिर्फ मेडिसिन लिख दें। आप क्यों इतना एफर्ट करें कि आप उनको सारी चीजें काउंसलिंग भी करें, उनको बताएं भी, एंड इट्स नियरली टू इम्पॉसिबल। सो द सोल्यूशन इज आप उसको रेफरल कर दें, जहां पे आपको लगता है कि एक डायबिटिक पेशेंट है एंड यू आर अप टू द लास्ट लेवल ऑफ मेडिसिन, देन यू नीड टू इवन इवन बिफोर दैट आप उनकी जरूर एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्टेशन रखवाएं, लाइफस्टाइल कोच के साथ कंसल्टेशन रखवाएं, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैप्स या रिवर्सल की तरफ आ जाए। ठीक है, तो यू आर वेरी राइट, ये हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम में इट्स नॉट जस्ट सिंगल अप्रोच। जी, एनीवन एल्स? और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। So thank you very much, all of you, for your wonderful participation, and Thank you so much, Dr. Tahira. thank you very It much, was a Dr. wonderful. Shabano and the team, for giving me this opportunity. No, And thank you so much, inshallah, Madam. some other time we will, continue this learning as well. Inshallah. Thank you so much, ma'am. Means a lot. बहुत बहुत Thank शुक्रिया. you. Thank you so Thank much. you. Thank you so much. Jazakallah.